Example. Topic is binomial theorem. Okay. Example goes, compute 98 raised power 5. Look here. You have to compute this. You have to find the value of this. Yes, sir. There is a way you can multiply it 5 times. Yes, sir. Right? But we will try to apply this binomial theorem. How we will solve this with the help of binomial theorem. Okay. So we do have. 5C0. We can write it 98 raised power 5 can be written like this 100. Yes, sir. Because it is easy to multiple different higher indices of this 100, 1000, 10 वगैरह. 100 minus 2 I can write it like this. Okay. Now this is your A, this is your B. You can write even like this. That is 100 plus minus 2 whole raised to power 5. Right. Now this is your A and this is your B and this is your N. Okay, now apply binomial theorem. We know that binomial theorem A plus B whole raised to power N is equal to NC0 A raised to power N plus NC1 A raised to power N minus 1B plus so on plus NCN. अब ये 0 बनेगा और ये इसका power 1 N. Okay, now apply. N is 5, A is 100, B is minus 5. Substitute here. So that means I can write 98 raised to power 5 is equal to 100 minus 2 raised to power 5 is equal to. Substitute. Now you know that I can write it like this and this is your minus 2. है ना? This is your A. A की जगह है, B की जगह है, N की जगह है. तो N की जगह 5 देंगे तो 5C0. Okay? A raised power N means 100 raised to power 5 plus 5C1 A raised to power 5 minus 1, that is 4. B means minus 2. Okay? Plus 5C2 100 raised to power 3 minus 2 raised to power 2 plus 5C3 100 raised to power 2 minus 2 raised to power. Okay? Yes, sir. That plus 5C4 Yes, sir. 100 raised to power 100 raised to power 1. 1, right, minus 2 raised to power 4. Yes, sir. Okay, 5C5. plus 5C5 100 raised 100 पर 0 वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 1 बन जाएगा. minus 2 raised to power 5 और कुछ. No, sir. Now you have to simplify it. 5C0 is always 1. Yes, sir. 5C5 is also 1 1, sir. Yes, sir. because NCN is 1, NC0 is 1. Okay, so that means I can write it like this. इसके बदले 1 तो यहाँ पे आएगा 100 raised पर 5 तो कितने आएंगे 1 फिर Raised to power 5. नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या अगर आपके पास ऐसा हो ना. अब देखो 100 raised power 2 इसका क्या मतलब है 100 into 100. Yes, sir. That means 1 4 times 0. 0, 1. ठीक है. अगर 100 raised power 3 हो तो क्या बनेगा. अब 3 टाइम्स करना तो 1 ये आएगा ना. तो जब यहाँ पे 2 थे तो पावर 2 था तो यहाँ पे 4 बन गया. ठीक है. यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 3 थे तो 6 बन गया. जब यहाँ पे 2 हो यहाँ पे 5 हो तो 10 बन जाएंगे जीरोस. समझ आया. ये इजी वे है इसलिए मैंने इसको 100 में कन्वर्ट किया. तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस. ये बन जाएगा ये तो 1 है ये बन जाएगा 10 जीरोस. 5 हुए यहां तक ये 10 plus 5C1 that means 5 factorial divided by 1 factorial into 4 factorial. समझ आया. NCR की डेफिनेशन. ठीक है. 100 raised to power 4 means 1 और odd zeros. समझ आया कैसे. इस तरह यहाँ पे था ना 5 ये 2 थे ऑलरेडी यहाँ पे 5 था. 5 2 10 तो 10 जीरोस आएंगे. 2 जीरोस हैं 4 है पावर तो 8 बनेगा. 2 into 4 is 8. 4 और 4 8. ठीक है. और यहाँ पे -2 राइट. प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 5 minus 2 is 3 फैक्टोरियल राइट. 100 raised to power 3 that means 1 6 6 times 0.
ठीक है, इंटू ये बनेगा 4, समझ आया कैसे, राइट। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 में दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, राइट। यह आएगा 4 जीरोज और ये बनेगा -8, समझ आया। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल, वो लिखना है, नहीं लिखना है, एक ही बात, 100। यहाँ पे आएगा 16 क्योंकि इवन पावर है, 5 से 5 इज 1 है ना, 1, और ये बनेगा -32, समझ आया। अब सिंपली कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 1 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 2 1 यहाँ से 2 क्योंकि है 1 2 3 4 है ना, 2 और 2 खत्म, ठीक है। या ऐसा करो, यहाँ से आएगा ना, अच्छा मैं लिखता हूँ ये स्टेप, 5 लिखूंगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस पहले ही लिखूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, माइनस है ना मल्टीपल में, तो ये इसके साथ तो माइनस बनाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस को इसके साथ, तो ये बनेगा 2 और ऑड जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 5 शाबाश 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे मैं 4 भी लिखूंगा इवन, या 4000 लिखेंगे, ये क्या है, 6 जीरोज हैं, ये बनेगा सबसे पहले यहाँ पे माइनस है सर। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में लिखूंगा 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 8 4 जीरोज, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चा, तो आएगा 5 प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, यह बनेगा 1600, ठीक है। यह बनेगा -32। यहां तक समझ आया, कोई शक? राइट है, ओके। दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, 10 zeros, 5 minus 5 माइनस ये और ये खत्म, ये बनेगा 10 5 2 10, और ये सारे जीरोज कितने हैं, ये 8, तो 9 बनेंगे। अब प्लस 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 1 2 2 तो 10 बनेगा, 10 इंटू 4 इज 40, तो एक और जीरो इंक्रीज हुआ यार, ये 6 थे तो 7 होगा, 4 और 7 जीरो, 4 5 6 7, ठीक है, माइनस 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 1 2 2 ये 10 बन गया, इसके साथ मल्टीपल करो, एक और इंक्रीज होगा, तो 8 और 5 जीरोज बनेंगे, 8 lakhs, ठीक है। देखो बच्चा 4 फैक्टोरियल खत्म, 5 0 0 है 0, 5 30 0, 5 1 5 5 और 3 कितने में 8, ये है -32, ठीक। देखो यार ये माइनस करना है सिंपल, तो जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट 9039। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है, लेकिन यूज BODMAS, यूज दिस इज द वे हाउ टू मल्टीपल, ये आपको बताता है। आपको मल्टीपल करना है, ऐड करना है पहले कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फाइनली आपको मिलेगा आफ्टर सिंपलीफिकेशन यू विल गेट 9039 2079 68, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। ओके राइट डाउन, दिस इज द फाइनल आंसर। ये समझ आया कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और बात, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप 101 रेज पर 5 इवैल्यूएट करो,
101 रेज पावर 6 इवाल्युएट करो। अब क्या करेंगे 100 प्लस, क्योंकि 100 को मल्टीपल करना इजी रहता है, फिर ये यूज करेंगे। ठीक है, चलो राइट डाउन। Okay, let's start. Next example goes like this. You have to recognize which of the following is larger. Which of the following is example number 3. And numbers are 1.01 raised power 1 lakh. ठीक है, you have to recognize is this larger or 10,000. ठीक है, जरा देखो ये इसके पावर में 6 जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं पावर में। 6 हैं, ठीक है, तो मैंने 5 लिखे थे, 6 जीरोज। ठीक है, तो दैट मीन्स 10 lakhs है इसका पावर। 1.01 रेज पावर दिस क्वांटिटी, ये बड़ी है कि ये, हमको ये रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो आपको पता है बड़ा हुआ, अगर मैं लिखूं 2 और 3 में से कौन, आप कहेंगे 3, दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं ये प्रूव हो गया, ये सक्सेस हासिल की है कि ये प्रूव करने में कि दिस इज ग्रेटर देन दिस बाय अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर 0.01, दैट मीन्स दिस इज बिगर। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब वो हमें पता है वो क्या है, लेकिन इसका पता नहीं है कितना है, मत है, तो इसी को एक्सपेंड करें, हमें यहाँ से ही पता चल रहा है हम क्या लिखेंगे। तो मुझे पता है सोल्यूशन में मैं ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट डाउन 1.01 रेज्ड पावर 10 lakhs। ठीक है, that I can write it like this as a binomial expansion, 1 plus 0.01 raised power 10 lakhs. Now we can apply what? Binomial. Now this is your A, this is your B, and this is your N. Use binomial theorem. Use binomial theorem. Now you know that what is binomial theorem. That means this is A, this is B raised power N, and I can write this. This is equal to, यहाँ पे देखो NC0, that means 10 lakhs C0, right? A raised power N, that means A raised power this, लेकिन वो लिखना नहीं लिखना एक ही बात है, क्योंकि 1 को कोई भी फाइनाइट पावर लगाओ वो फिर 1 ही रहेगा। अच्छा, इंटू दिस, इंटू, लेकिन इसका पावर 0 होना चाहिए, लिखना जरूरी नहीं, प्लस 10 lakhs C1, इसका पावर क्या, इससे एक कम, इससे एक कम, तो दैट मीन्स वो लिखना नहीं लिखना एक ही बात है, वो फिर भी वही आएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आपके लिए ऐसा -1। ठीक है, इंटू 0.01 रेज्ड पावर 1 प्लस, इसी तरह देखो ये जो है ये क्वांटिटी, इसके बाद ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये छोटी हो, जितना आप इनका पावर इंक्रीज करते जाएंगे ना, 0.01 का पावर इंक्रीज करते जाए, छोटी होती जाएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो इस तरह फॉर एग्जांपल जो 0.01 है रेज पावर 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर ऐसे हो 0.01 रेज्ड पावर 2, उसको क्या लिख सकते हो, ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 100, तो वो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये स्क्वायर 1 को भी और 100 को भी है, वो बनेगा ऐसे कुछ। अब मुझे ये बताओ 1 बाय 100 बड़ा है कि 1 बाय 10,000 बड़े हैं, कैसे इक्वल है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होना, अगर न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है।
इसका मतलब हुआ आपको एक डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 100 आदमियों में, लेकिन हर एक को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो हर एक को 1 रुपए में से 1 पैसा मिलेगा, बराबर बराबर, ठीक। अगर वही 1 रुपए अब आपको 1000 आदमियों में, या कितने हैं ये 10,000 है, तो उनको 1 रुपए मिलेगी, उससे कम मिलेगा। इसका मतलब हुआ 1/100 बड़ा है। वही मैं कह रहा हूं 0.01 का जितना पावर बड़ा होगा उतना वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम ये स्टोरी आगे चलाएंगे, ये रेज़र पावर 2 ये तो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन मसला कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, नेगेटिव नहीं बनेगी। छोटा होगा डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिव। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये मैंने लिखा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सम पॉजिटिव नंबर। चलो मैं लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर बट स्मॉल। छोड़ो वो स्मॉल उमाल लिखने की जरूरत नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, मैं इन्हीं 2-3 टर्म का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब बताओ हमें पता है इसका वैल्यू क्या है, NC 0 1, एग्जैक्टली 1 प्लस, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 1 ही है, ये हुआ 1/, चलो पहले मैं ये एक्सपेंड करूंगा, 10 lakhs है ना, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो वो लिखना एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे 10 lakhs माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, इसका मतलब क्या हुआ 1/100 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, सम पॉजिटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव अगर होता वो हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ पे फैक्टोरियल ही है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर आप ये एक इसे काटेंगे तो कितना बनेगा, जरा बोलो, 1 प्लस 10 lakhs में से 10 करोड़ में से एक आपको कम करना है, तो क्या आएगा 9 करोड़। हाँ, ऐसे लिखेंगे, चलो मैं आपके लिए लिखता हूं, हम क्या लिखेंगे, इससे एक अगर कम करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर एक कम कर, देखो यहाँ पे 10 है ना, माइनस करेंगे 1, राइट, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये बनेगा 10 से एक काटेंगे तो 9 बचेगा, राइट। ये भी 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। यहाँ पे देखो 10 करोड़ में से आपने एक निकाला, ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये बनेगा 10 से यहाँ पे होगा, ये बनेगा 10, लेकिन ये अब पीछे रहेंगे, नहीं। अब इस 10 से आपने एक काटा तो 9 बचेगा, इसे कुछ नहीं काटना तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, बराबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि ये 0 बनेगा यहाँ पे, है ना। तो जब आप ये कम करेंगे इससे, ये तो ठीक है, इससे मैंने एक कम किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे यहां से काटना है। अच्छा, ये करने की जरूरत ही नहीं है, चलो मैं ऐसे ही रखता हूं, हमें माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे रखता हूं। देखो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हो, हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ ना, 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ही है ना। तो ये और ये खत्म, ठीक है। अब देखो जब आप यहां पे हैं आपके पास 10 करोड़, अब एक कम करो तो क्या लिखेंगे, नहीं 10 करोड़ ही 1, राइट, -1, लेकिन उसका फैक्टोरियल, बिल्कुल, होल डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे है ही ऐसे, तो लिखेंगे 10 करोड़ -1 फैक्टोरियल इंटू 1/100, देखो ये और ये खत्म, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, समझ आया ये। अब देखो दैट इज इक्वल टू,
अब यहां से 2 जीरो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये यहां पे 2 जीरो, तो आएगा 1 प्लस 10,000। समझ आया? क्योंकि हमें इसका ये आया इसके बराबर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ये इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा डेफिनेटली। लेकिन हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि हमें यह आया इसके बराबर और यह करना है कंपेयर इसके साथ। अब यहां पे हमें इसकी फिगर इसमें कन्वर्ट हो गई, प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर। तो दैट मीन जब हम ये सारा इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी ही होगी, क्योंकि ये 10,000 ऑलरेडी इसमें है और 1 भी है और कुछ और भी है। इसका मतलब हुआ अगर ये सारा इससे बड़ा है, दैट मीन्स ये इससे बड़ा है, क्योंकि ये इसके बराबर है। विच एम्प्लॉइज 1.01 रेज्ड पावर 10 करोड़ is greater than 10,000। समझ आया रीजन? चलो लिखो।